Hello friends, Namaskar दोस्तों, very good morning. Today is 1st of March 2024. महीने का पहला दिन है. I hope ये जो महीना है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए अच्छा जाएगा. And if you keep following my videos in Forex and commodity, I think it will help you to trade Forex commodity because मैं हूँ SD Shananda Das, your Forex and commodity market trader with a global market and multi-asset trading specialization. तो ये जो वीडियो है मैं पहले ही बोल देता हूँ कि बहुत लोग स्किप करते हैं एंड आगे जाती है मूव अहेड. सो दिस वीडियो इज बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट्स हैपनिंग विद बॉन्ड्स, currencies, and finally commodities. And we will look at in bonds, US bonds, and then we are going to look at the Indian based or Indian focused pair like Euro USD, INR, GBP, etc. We are going to look at commodity markets for the commodities that are listed in MCX. Those are we'll look at the opportunities. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑलवेज जहां से स्टार्ट करते हैं दैट इज द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स या और भी कोई या ईएन मैक्रो माइक्रो. लेट्स गो टू ईएन मैक्रो माइक्रो. वहां से एक जाने का फायदा है इन ईएन मैक्रो माइक्रो आई कैन डायरेक्टली गो टू द एनालिटिक्स. मैं डायरेक्ट एनालिटिक्स में जा सकता हूं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपको स्पेशल ऑफर मिलते हैं ये ईएन मैक्रो माइक्रो का. काइंडली उसका इस्तेमाल करके परचेज कीजिएगा. ये रहा. तो ये रहा. यू विल गेट अ फ्री ट्रायल ऑफ 2 months और अ मंथ पॉसिबली and then you get a special 67% discount on their plans, which is massive. Next, come to analysis daily. Analysis daily पे आएंगे. So 1st March is the Friday. So we have China PMI, we have HICP, we have ISM manufacturing PMI, etc. So these datas are there. Let me check the trading economics also. दोनों कैलेंडर को कंसल्ट करना सही रहेगा. So this is March 1, Friday. Friday, we usually the first Friday of the month जो होता है, that is the dedicated to non-farm payroll. But ये जो non-farm payroll, I think it will come next week's Friday क्योंकि first बहुत पास था. So we're likely to get the non-farm payroll on 8th, 8 तारीख को. तो इस 1 तारीख आज के लिए जो important data है, that is the ISM manufacturing PMI, इसमें movement होगा. There will be depends on कैसा है manufacturing PMI. If US manufacturing recovers, that will be a strong message, and definitely we can see further interest rate going up, especially on the longer end of the curve, मतलब 10-year 20-year range में. बट ओवरऑल लेट्स गो नाउ टू द बॉन्ड मार्केट. सो हम लोग बॉन्ड मार्केट को देखेंगे और इसके लिए मैं रेनबो का फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल कर रहा हूं. एंड वी विल गो टू डायरेक्टली 2-year bonds and will bring RSI X. 2-year bonds that after going bullish crossing the mark it is not able to hold. जो हम लोग डिस्कस किए थे कि शॉर्टर एंड ऑफ द कार्व जो है वो फेडरल रिजर्व के साथ लिंक है. इट विल नॉट बी एबल टू गो अप significantly because the Fed is expected to cut interest rate. Now इसके साथ what we can see that bond interest rate जो ऊपर की तरफ जा रहा था उसमें एक significant halt आया है. There is a red candle आया है एक 2-year interest rate में. This is dollar bearish. Then we and that is one of the reason कि yen थोड़ा benefit किया है from this interest rate जो lastly loss कर दिया फिर से. But overall 10-year interest rate we are seeing once again a move towards down. थोड़ा downward push ही दिख रहा है एक full red candle. तो that means it can drop further. हम लोग जो लॉन्ग टर्म पोजीशन लेते हैं टुवर्ड्स द बॉन्ड वी विल प्रेफर कि that will go into bond fund once this levels clear हो जाए थोड़ा and we can
be sure, yes, this is going to be further drop, not the other way around. ये जो यूएस लॉन्ग टर्म चार्ट है, 30 ईयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट चार्ट, उसमें एक बुलिश प्रेजेंस है. आई नीड फर्दर बियरिश प्रेजेंस की इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करने वाला है, देन आई कैन गो टू टीएलटी एंड अदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स. ये जो मंथली चार्ट में इट्स स्टिल, ये जो बुलिश रन, इट इज नॉट स्टिल अ फुल रेड कैंडल की बियरिश. So we can still go up, not going up. Trend is neutral, as you can see from the background. But definitely this is a major risk जो है, जब तक हमें और convincing option नहीं मिल रहा है from the signal from the weekly chart, हम लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में नहीं जाएंगे. बट लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड में जो लोग और शॉर्ट टर्म के साथ स्विंग करना पसंद करेंगे, इट इज अ बिट टाइम टू गो टू द टीएलटी. क्योंकि यहाँ पे फॉल, इफ यू सी नाउ, चलिए आईएनडी मनी पे चलते हैं. जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहा है, आपको दिखेगा टीएलटी विच इज लॉन्ग टर्म ट्रेजरी फंड, 20 ईयर प्लस ट्रेजरी, it has gone up in price. As you can see, as it is declining, it is going to, so this can be another further turnaround के upside में. So it can happen. This could be the turning point. This is significantly जो bullish move last वो खत्म हो चुका है interest rate में. So bond price is benefiting. But यहाँ पे हमें question करना पड़ेगा, why bond price is benefiting? Is it a flight to safety? क्या safety की तरफ पैसा जा रहा है, और या तो higher जो inflation expectation था, that is gradually declining. So that will be one of my focus of research in the coming days. अब हम लोग करेंसी मार्केट में आ जाएंगे. करेंसी मार्केट में आई विल लुक एट द डॉलर इंडेक्स. पहले डॉलर इंडेक्स, द इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप इज नॉट गुड फॉर डॉलर, बट ओवरऑल डॉलर वो has been able to maintain the range. In fact डॉलर में थोड़ा बाइंग प्रेशर था, बट इट्स इन अ फुल्ली रेंज. सो डॉलर को आउटराइट सेल या आउटराइट बाय फुल्ली हम लोग नहीं कर सकते. हमें पेयर ढूंढना पड़ेगा, किसके साथ डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसके साथ डॉलर ज्यादा वीक है. सो इंडिया में वी कैन लुक एट फ्यू पेयर्स. यूरो यूएसडी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो सिंथेटिकली हम लोग बना सकते हैं. सो यूरो यूएसडी इज अंडरगोइंग अ करेक्शन. ये फर्स्ट रेड कैप्स के बाद मेरा जो एग्जिट, आई एम कंटिन्यूइंग स्टिल अलर्ट इसमें रखा गया है. प्राइस एक्शन बुलिश, ना तो ये सेल के तरफ ना बाय के तरफ. सो इट्स अ कंफ्यूज्ड मार्केट. सो आई विल स्टे अवे फ्रॉम यूरो यूएसडी फॉर नाउ. जीबीपी यूएसडी में जो ट्रेड था, दैट डिड नॉट वर्क आउट फाइनली. जीबीपी यूएसडी उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, बैकग्राउंड टर्न रेड. मार्जिनल करेक्शन का सिग्नल पहले आया था, बट मेरा जो पोजीशन था वो हम लोग पहले ही डिस्कस की, इट वाज फोमो, बिकॉज ये लेवल का मुझे ब्रेक चाहिए था. सो ये फोमो भी एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज बैकग्राउंड रेड यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड रेड हो चुका है. सो ये फोमो मैं लॉस में, मार्जिनल लॉस में एग्जिट किया हूं. बट ये जो अभी का पोजीशन, ये मुझे बहुत मजा दे रहा है. इट्स मेकिंग मी वेरी इंटरेस्टेड, एंड दिस लॉस इज नॉट एट ऑल बॉदरिंग मी. ये जो रेंज, ये अब इसके पास आ रहा है. सो वी कैन सी, इंस्टेड ऑफ बाइंग, वी कैन एक्चुअली सी अ डाउन साइड ब्रेक. एंड अगर ऐसा हुआ जैसे माउंटेन टॉप ऑपोजिट साइड जाता है, सिमिलरली ये माउंटेन बॉटम तक आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, आने का पॉसिबिलिटी है. या तो दिए जो लेवल्स है यहां तक आने का पॉसिबिलिटी है. सो वंस अगेन पाउंड में गो बैक टू इट्स प्रीवियस रेंज जो था, वो रेंज में वापस जा सकता है, जो एक बिगर अपॉर्चुनिटी होगा. सो आई हैव प्लेस टू अलर्ट्स, प्राइस एक्शन बियरिश और प्राइस एक्शन बुलिश. मैं और नहीं लगाऊंगा. प्राइस एक्शन बियरिश ये लगा के मैं दिखा दे रहा हूं. यू हैव टू पुट दिस, देन इट विल बी क्रिएटेड. और आप फिर से और एक अलर्ट भी आप लगा दे सकते हैं. आई विल कैंसिल लेटर ऑन एक अलर्ट को, एक्स्ट्रा हो गया. प्राइस एक्शन बुलिश, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू टेक एनी ट्रेड, जब वो आएगा तब बाकी पैरामीटर्स को देखेंगे, देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू. But at least for now, we don't have anything to do. Now, USD JPY, dollar yen could not sustain. Rainbow gave an awesome exit. A candle squeeze, okay. That is the power of
ये जो कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस जब 150.5 इस लेवल पे होवर कर रहा है, स्टॉप लॉस इज सो बिग. But these candles are not ordinary candles. Shi Hanbun no Ashi candles, you can see they are going up. As there is a sharp risk of reversal, they sharply gone up and made our trade exit. So यहाँ पे it's a full exit has come. उसके बाद आज मार्केट ऊपर है, but I don't have any regret. And there is nothing to regret because I have exited as per my rule and it was a good ride. It was not great but a small ride or small होना ही था because this was the level. It is not able to go up significantly. तो फिर से USD JPY में एग्जिट होके बाहर रहना और ये सारे लेवल का एक ब्रेकआउट देखना और मिनिमम प्राइस एक्शन बुलिश होना विल बी रिक्वायर्ड. So let's see how it goes. Based on that, we can act. JPY INR कल पहली बार एक चांस आ रहा था, बट मैं क्लोजली इसको वॉच कर रहा था. आई वॉज वॉचिंग दिस, but I did not get a full green candle during our closing time in India. So I decided to wait a bit further because this would have been a long early buy. तो अर्ली बाई पे थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है. फुल ग्रीन कैंडल, दैट इज द मिनिमम. इसके अलावा प्रेफर्ड इज दैट बैकग्राउंड वी गेट ग्रीन, देन द प्रेफर्ड ट्रेड. पर ठीक है, फोमो क्वांटिटी या छोटा क्वांटिटी के लिए वी कैन डू द मिनिमम क्राइटेरिया, बट मिनिमम क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हुआ ना. आज डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव फुल रेड कैंडल इधर. तो इसमें भी प्राइस एक्शन बुलिश और प्राइस एक्शन बियरिश अलर्ट लगा दीजिए. जब वो अलर्ट आएगा देन look at other parameters like what short term momentum is doing and based on that you will trade. Currently market ना बाई के लिए अच्छा है ना सेल के लिए. मेजर 6 मोमेंटम फैक्टर्स, 8 आउट ऑफ द 6 मोमेंटम फैक्टर्स बुल के साथ है. तो बेच नहीं सकते, मिनिमम 50% मोमेंटम तो चाहिए ही होगा. और टोटल जो फैक्टर्स है, टोटल फैक्टर्स में अबाउट 6 फैक्टर्स बुलिश, 5 factor bearish and 1 factor neutral. So it's a very much of a mixed market. Consolidation probability 57. ना buyers का जीतने का गुड, ना sellers का जीतने का गुड. तो ये मार्केट है. शांति से एंजॉय कीजिए, आराम से ट्रेड अलर्ट लगा दीजिए. मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूं. अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में आपको टेंशन ज्यादा है, so let's place the alerts and we'll be gone. And next jo trade I have decided to enter is, and this will be a long-term trade in USD INR. USD INR I've decided to play the short, and I will continuously, and what I'll do, I'll be continuously selling, not big quantity क्योंकि this is unlimited risk, is put. इसमें spread करके फायदा नहीं होगा, तो we'll go for naked put. Naked put, small quantity, I'll continue to sell using the flat line here level, and I will hold future, which I will very likely I'll have to roll over. मुझे यहाँ पे USD INR is looking a bit changed in the mood, थोड़ा bearish and more towards 5-6 30 पैसे का एक ड्रॉप होने का पॉसिबिलिटी मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है. ये जो बैकग्राउंड रेड, ये हैज नॉट बीन सिंस जुलाई 2023, और बैकग्राउंड रेड और यहाँ पे मोमेंटम बैकग्राउंड रेड, दिस हैज नॉट हैपेंड सिंस May 2023, और इतना सिग्निफिकेंटली नॉट सिंस January 2022, which is quite significant, quite long term. So इसमें थोड़ा पोजीशन मुझे डालना पड़ेगा. I want to test this. I want to test this hypothesis कि USD INR can go down because INR should be strong because not कुछ fundamental issues तो definitely है ही INR में. Because fundamentally we are a depreciating currency, but there are reasons to be strong on INR. India is in a very strong place as we move to the current recessionary cycle. So इसमें India का position अच्छा है. I think INR should get some benefit, and mostly with the interest rate coming down, long-term interest rate in US,
this should be beneficial to INR. But ज़्यादा gain expect नहीं कर रहे. I'm not expecting, predicting anything. This is a significant downward turn, so stop loss is not that big. 50 paisa is not even 35-40 paisa stop loss I can easily take. ये कोई stop loss है ही नहीं मेरे लिए, so this is not a big stop. I want to test this out, because if it drops towards the empty line, I'm still talking about 50 paisa. Still my risk reward is quite favorable, and even if a smallest drop, I can see a 1:1 risk reward. So currently it's quite a good one to start it, and this is, I'll do a little higher than FOMO quantity because this one does not move much. So FOMO quantity करके immediately कुछ नहीं मिलेगा, maybe double FOMO of what I can do. So next is this is USD INR. JPY INR could have been an opportunity, but did not work out in the daily time frame. We'll see how it goes. JPY INR. Let's go to once have a quick last look at GBP INR. We can see further breakdown. INR is strong. GBP is particularly not so strong. It is attempting to break. So I can, if this is a red line, I think I will be a bit aggressive on the GBP INR, and I'll try. If of the way I'm thinking now, is the way technical picture is setting up GBP with this struggle 104.46, 103.59, and very important 103.25 to 103.13 zone. So ये सब zone को test करेगा, and I'm expecting to track GBP INR lower. With USD INR on the stronger side, GBP INR is definitely looking stronger. So JPY INR, I'll have to strongly think about. Even if USD JPY means yen becomes strong, INR itself strength project कर रहा है, so that would be good. Let me check the currency का जो है उसको एक बार check करेंगे. Forex currency. Yes, you can see INR and JPY both showing strength. So INR को हम लोग short नहीं करना चाहेंगे. INR is looking a bit different structurally, जो बहुत देर तक ऐसा हुआ नहीं. GBP INR, I'm looking closely for short opportunities. Euro INR एक range में है. ये जो buying का opportunity था, ये this did not work out. ये अच्छा हुआ हम लोग consider किए exit का, and if you have not exited, still this is the time to exit. Red background हो चुका है. No, nothing to of hope. अगर loss हुआ है, मेरा loss हुआ तो भी मैं exit करता. I exited a bit early, but still marginal. I did not get much. It is a marginal loss, but फिर भी it's an exit now, so definitely exit and wait for the next signal. ये जो हम लोग बाइंग किए थे, इट ऑलमोस्ट आइदर ब्रेक इवन पे एग्जिट हो रहा है या मार्जिनल लॉस पे एग्जिट हो रहा है. ज्यादा डाउन मूव हुआ नहीं. एटलीस्ट मैं ये कंडीशन पे अब बाय ट्रेड, अगर मैक्स स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ तो बाय ट्रेड आई विल नॉट होल्ड, बिकॉज बैकग्राउंड है वो रेड, मतलब ये जो शॉर्ट ट्रेंड है वो बियरिश हो चुका है. इसके साथ साथ दो पेयर में एग्जिट करना वाज अ गुड आइडिया. कल हम लोग पार्शियल लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग पार्शियल एग्जिट की बात किए थे. दिस इज अ बिग मूव, एंड अगर अभी भी एग्जिट नहीं किए, एग्जिट इट. अ गुड रन मिला था. आफ्टर दैट मिनिमम स्टॉप लॉस सेट, उससे इंपॉर्टेंट रेड कैप्स आया, शॉर्ट मोमेंटम, सारा जो प्राइमरी एग्जिट सिग्नल आया है, और मेरा बैकग्राउंड येलो से मैं इसमें फुल एग्जिट कर चुका हूं. जीबीपी पाउंड येन मेरा कुछ कुछ फुल एग्जिट है. जो मेरे स्टूडेंट्स है दे नो दिस, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको. फिर ये येलो बैकग्राउंड होने से या 50% बॉडी रेड होने से या रेड कैंडल आने से आई मेक द फुल एग्जिट. और ये जो रेड कैप्स पाउंड येन का हम लोग बात किए थे, पाउंड येन हम लोग पार्शियल प्रॉफिट आई डिड विद दिस रेड कैप्स. रेड कैप्स के साथ पार्शियल प्रॉफिट, देन अगेन री एंट्री विद पिरामिडिंग रूल्स, then again exit. This is the way I flow with the market. So फिर से जब सिग्नल आएगा I'll come. अभी मैं प्लेस कर दिया हूं प्राइस एक्शन बुलिश, प्राइस एक्शन बियरिश, both sided alert.
और मैं ट्रेडिंग के लिए अपना फंडामेंटल मैक्रो ये अंडरस्टैंडिंग का भी इस्तेमाल करता हूं। उसके लिए दे गिव मी अर्लियर हिंट्स। गोल्ड हैज बीन बुलिश, काफी स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है। आई एम क्लोजली वॉचिंग, बट मैं अभी तक कॉन्फिडेंट इसमें हूं नहीं, क्योंकि मैं पहले ही आई मस्ट हैव डिस्कस्ड, जो मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं, कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, माउंटेन टॉप, और ये एक रेंज है। So it's good that gold broke above ये जो लेवल था 2037, that means bulls are strong। ये लेवल्स है, ये जो है ये सारे लेवल्स है। तो अब इसको हटा देते हैं, इसको लाते हैं। तो ये क्लोज लेवल्स पे यहां तक डेफिनेटली एक टेस्ट आउट का पॉसिबिलिटी है, बट दिस इज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस एज पर द रेनबो सेटअप, एज इट इज द माउंटेन टॉप। So let's see how it goes. I'm not really super confident right now, but gold का structure rainbow का looks interesting. This is one of the, अगर बना पूरा तो one of the profitable structure of rainbow, which is the rounding bottom of rainbow. So this is a beautiful structure. Let's see how it goes. मैं closely watch करूंगा गोल्ड का फॉर्मेशन को। कोई लेट नहीं हुआ, तो नॉट ट्रेड लेना भी एक टाइप ऑफ ट्रेड होता है। एंड आई एम नॉट कॉन्विंस, जैसा मैं सिल्वर में कॉन्विंस नहीं था, अभी भी कॉन्विंस नहीं हूं, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो और ये डिसीजन कल सेल दिख रहा था, ये ट्रेड ना करने का डिसीजन वर्क्स वेल फॉर मी। ये ऊपर की तरफ दिया, कोई डायरेक्शन नहीं है। सो आई विल वेट इन सिल्वर फॉर फर्दर क्लैरिटी। आई एम अ डायरेक्शनल प्लेयर, नॉट अ नॉन डायरेक्शनल प्लेयर। आई विल वेट फॉर मोर एंड मोर क्लैरिटी कि मार्केट में क्या होगा, डायरेक्शन जब आएगा, then only I will consider। this range is very important, जब उसका ब्रेक होगा तब बहुत ही मजा आएगा, बट अभी this is really not good, this is really not working very well। अब हम लोग चले जाएंगे कॉमोडिटी में। बॉन्ड हो गया, करेंसी हो गया, अब कॉमोडिटी। कॉमोडिटी द ट्रेड दैट बाई के बाद में प्रॉमिस दिखाने के बाद डिड नॉट वर्क आउट इज द जिंक। बहुत अर्ली बाइंग था इन द, ये जो ब्रेक अटेम्प्ट, उसके बाद सेल सिग्नल डिड नॉट वर्क आउट। अब एक रेंज में जा चुका है, अब एक ब्रेक चाहिए होगा टू डू दिस। मार्केट जो है वो देखते हैं पहले क्या है। मार्केट है एक बुलिश रेंज, बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी 57, कंसोलिडेशन का 43। एज पर दिस टाइम फ्रेम दिस इज अ बुलिश रेंज मार्केट, और उसमें एक फुल ग्रीन कैंडल के साथ अगर ये क्लोजिंग हुआ तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो ये बाइंग आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन किया 214, ये फ्लैट लाइन, दिस कैन गो सिग्निफिकेंटली अप। अपसाइड रेजिस्टेंस है 217.20। मैं जिंक 2 देख रहा हूं, आप जिंक 1 भी लगा सकते हैं जो फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आई थिंक लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे ये लेवल से वापस आना जिंक का इज क्वाइट सॉलिड, तो हम लोग वेट कर सकते हैं जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए, देन विल बी मोर कंफर्म्ड ऑफ द बाइंग। तो और क्वांटिटी ऐड करने के लिए आप 216 क्रॉस का अलर्ट डाल दीजिए, और अभी फोमो क्वांटिटी डाल सकते हैं आफ्टर द कैंडल क्लोजिंग विच इज अराउंड 11 o'clock, around 11:05, 125 मिनट्स। और डेली चार्ट में ये जो हम लोग देखेंगे, ये जो बाइंग है, दिस इज अ वेरी स्मॉल चांस अगेंस्ट कॉन्ट्रा, सो इसमें ज्यादा रिस्क लेना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो छोटा क्वांटिटी से फोमो कैन वी डू, yes, at the candle closing, if it's a full green candle, you can try it out, better would be above 216 for higher quantity। और छोटा एक दो क्वांटिटी, yes, that we can do, because
हमें शैडो बॉक्सिंग, शैडो ट्रेडिंग करके ट्रेडर नहीं बन सकते, तो आपको मार्केट को फील करना पड़ता है. So let's feel the market. If you want, you can go for the FOMO after the market close. Sorry, after the candle close. कॉपर अपना टारगेट लेवल रीच हो गया, उसके बाद करेक्शन मोड में गया. लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे डिड रीच, उसके बाद करेक्शन मोड. विल इट सीइंग बाइंग? आई विल गिव अ जो अलर्ट मैं वेट करूंगा, ये सब में से आई विल प्रोवाइड कीप अस दिस अलर्ट. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाइए, एड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन क्रॉसिंग अप, तब जाके इसको देखेंगे. बिफोर दैट नो, क्योंकि मोमेंटम चाहिए. अनलेस नो मोमेंटम या फिर सेलिंग करना है तो क्या चाहिए? फुल रेड कैंडल. नेक्स्ट अलर्ट ऑल्ट ए, प्राइस एक्शन बियरिश, डन, ट्रेडिंग खत्म हो गया. और जब अलर्ट आएगा, हम लोग ह्यूमनॉइड बन रहे, अलर्ट आ रहा है, मशीन हमें बता रहा है, फिर मैं ह्यूमन जजमेंट, अपना एनालॉजी, फिर फंडामेंटल, जो भी व्हाट एवर इट इज, वी आर अप्लाई एंड बिकमिंग अ ह्यूमनॉइड ट्रेडर. So copper we have done. Zinc, aluminium is in a beautiful range. बहुत टाइम से अगर देखा जाए, you'll be able to visualize aluminium is operating within a tight range. So aluminium में avoid करना बेहतर है. लास्ट राउंड ऑफ जो बाइंग आया है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट वंस अगेन दैट इज विद इन द रेंज. तो रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए, स्पेशली ये माउंटेन टॉप, ये सब लेवल का अलर्ट डाल दीजिए. 203.7, 201.45, and you don't have much to do with aluminium. ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, नहीं तो ऑप्शन में खेल होता. लेट्स गो टू क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल का ग्रेजुअली इट्स मोर ऑफ अ मिक्स मार्केट. फॉरवर्ड कार्ब बुलिश हिंट दे रहा है, वेरएज जो टेक्निकल सेटअप में बुल्स भारी नहीं हो पा रहे. कैंडल साइज बहुत स्क्वीज हो गया. तो कोई भी अगर क्रूड ऑयल में फोमो क्वांटिटी भी डाले हैं, सो इट विल बी बेस्ट थिंग टू अवॉइड क्रूड ऑयल राइट नाउ. इट कैन मूव आइदर साइड, नो हरी, इसका ब्रेक होगा, विल गेट अ गुड रन. सो लेट्स वेट फॉर द सिग्नल. इस 21 के बाद हम लोग एक बार फॉरवर्ड कार्ब को देखेंगे. क्रूड ऑयल का बहुत ही स्क्वीज हो गया. देयर कैन बी सडन वोलेटिलिटी. फॉरवर्ड कर्व अभी भी बुलिश हिंट कर रहा है. जो फॉरवर्ड ट्रेड हम लोग लिए थे कैलेंडर स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड बहुत ही प्रॉफिट में जा रहा है, बट एक्चुअल जो क्रूड ऑयल का ट्रेड है वो प्रॉफिट में नहीं है. बट विथ दिस स्प्रेड राइजिंग, द ओवरऑल कैलेंडर इज गोइंग अप. In the international market, the it's bullish the overall, but बट यहाँ पे आरएसआई का जो स्ट्रक्चर है, अगर सडन फॉल हुआ, आई डोंट नो व्हाट कुड बी सडन फॉल, देन क्रूड ऑयल कुड सी अ वेरी वेरी बियरिश डाउन मूव. ये बहुत ही स्क्वीज हो चुका है इंडिया में. क्रूड ऑयल का कैंडल जो है इट्स टू स्क्वीज. हम लोग इंटरनेशनल कैंडल को भी देखेंगे, यहाँ पे भी क्लियर है मोमेंटम एकदम फ्लैट, कैंडल बहुत ही स्क्वीज्ड. बाद में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है. सो अनलेस दैट कम्स, इट विल बी बेस्ट टू अवॉइड. अब हम लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल नेचुरल गैस. नेचुरल गैस में हम लोग एक स्टॉप देखे थे कि एंड हुआ था जो सेलिंग का. ये जो सेलिंग का एंड, फिर यहां पे हम लोग बाय ना करके फर्दर इस लेवल का बाय किए थे. तब तक यहां पे एक बाइंग कैंडल यहां पे आ चुका था. तो नेचुरल गैस में अभी भी बाइंग कैंडल है, बट ये जो बाइंग है दिस इज अ कॉन्ट्रा बाइंग इन डेली. डेली में चार्ट में कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट द मेन ट्रेंड, और यहाँ पे द नेचुरल गैस इज नॉट रेडी टू बाय, सो इट्स मोर ऑफ अ सेल सिग्नल. सो ये जो बाइंग हुआ था नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत, इट्स मोर ऑफ अ रेंजिश एग्जिट हुआ था बाइंग पे, एंड नाउ इट इज ब्रॉडली इज इन अ रेंज. आई थिंक नेक्स्ट जहां पे मैं पोजीशन लेना पसंद करूंगा
कि मैं डेली चार्ट में I will like the probability to become around 35% बाई के लिए, और यहाँ पे एक बार प्राइस एक्शन बुलिश हो, जो थोड़ा अभी प्राइस एक्शन इज मोर ऑफ अ न्यूट्रल, और उसमें उसके साथ शॉर्ट जो ट्रेंड है, शॉर्ट ट्रेंड बुलिश हो। शॉर्ट ट्रेंड बुलिश हो और ये जो प्राइस एक्शन बुलिश हो, अनलेस दोस थिंग्स हैपन, नेचुरल गैस इज इन अ रेंज, कैन गो अप। अगर ऊपर गया तो दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट, एम्प्टी लाइन 2.12। इंडिया में देखते हैं, इंडिया में नेचुरल गैस में जो बाइंग का स्पार्क था वो फेड हुआ है। यहाँ पे भी सिमिलर पिक्चर, तो इंडिया में टारगेट होगा 176 अगर रिवर्सल गुड है, और सेकेंड एरिया ऑफ टारगेट होगा 205। मतलब रेनबो के स्ट्रक्चर के हिसाब से दीज आर द मेन एरियाज जहां पे सेलर्स होते हैं। तो 203-4 के आसपास एंड 176 के आसपास मेन सेलर्स होंगे, तो वी कैन गेट अ मूव ऑफ 20 रुपीज ऑन द नेचुरल गैस इफ वंस अगेन बायर्स कम बैक। सो लेट्स सी, अगर बाइंग के लिए 125 मिनट्स में बाई का अलर्ट डालना पड़ेगा। ये रहा नेचुरल गैस, यू लाइक ए बाई अलर्ट, दिस इज अ सेल सिग्नल आया है, रेनबो बाई। जब बाई आएगा अलर्ट, तब हम लोग बाकी पैरामीटर्स लाइक एसटी मोमो प्राइस एक्शन इसको देखेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट विल एंटर और एग्जिट। 125 मिनट्स में ये सेल विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस है, इसीलिए वी कैन ट्राई द फोमो क्वांटिटी। बट ये जो सेल सिग्नल मे नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग, ये कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, क्योंकि देखिए सेल का विन प्रोबेबिलिटी हैज अबाउट 29%। सो मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन तो मार्जिनल बुलिश कंसोलिडेशन में है। सो इसमें एक बार बैकग्राउंड ट्रेड आ जाए, तब आप मोर कन्विंस के साथ सेल कर सकते हैं। तो इसके साथ एंड हुआ नेचुरल गैस के साथ हमारा रेगुलर जो डिस्कशन मैं करता हूँ रिगार्डिंग माय ट्रेड्स, व्हाट आर माय आउटलुक्स, कहाँ पे मेरे अलर्ट्स है। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है, और अगर हो रहा है डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to my channel. All the best from my side and happy trading.